You know, even in Jesus' time, यीशु मसीह के समय में भी we can say there were many circles around Jesus. प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ लोग थे There was a huge crowd of people to whom he would speak. और बहुत बड़ी एक भीड़ थी जिनसे वो बातें करता था। And inside that, there was a small group of 70 disciples you read in Luke chapter 10. और लूक 10 में देखते हैं कि 70 लोगों को एक झुंड था जो कि उसके चेले थे। They were good disciples. वो अच्छे चेले थे। He sent them out to उनको preach, बाहर भेजा, 2 by 2 to preach. 2-2 करके भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 35 groups of people. 35 झुंड जो है करके भेजा। Then inside that, there was another smaller circle, और उसके भीतर एक और छोटा सा झुंड था, only 12. केवल 12 लोगों का। One was a crook, so there was another circle of 11. और उसमें से एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो 11 लोग थे। And inside that circle of 11, there were 3. और इन 11 लोगों के बीच में भी केवल 3 लोगों का एक झुंड था। So Jesus had different circles of people around him. और भिन्न प्रकार के जो है लोगों के झुंड प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ था। And the things he shared with these 3, he did not share with the 12. जो ये बातें अपनी बातें 3 जनों से बताता था वो सबसे नहीं कहता था। And those he shared with the 12, he did not share with the 70. और जो बातें वो 12 चेलों से कहता था वो 70 बाकी 70 Those से with नहीं the कहता 70, था। he did not share with the multitude. और जो बाकी 70 लोगों से कहता था वो बाकी भीड़ से नहीं कहता था। You can choose which circle you want to be in. तो आप खुद चुन सकते हैं कि आप किस झुंड में रहना चाहते हैं। If you only want to eat the loaves and the fish, you can be in the outer circle. तो अगर Everybody gets it. जो आप रोटी और मछली खाकर तृप्त रहना चाहते हैं तो आप उस भारी झुंड में रह सकते हैं। Those who come to the Lord, please, Lord, bless me materially. That's all I want. और जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तू आशीष दे वास्तविक तौर से, For that, you don't have to do anything. तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। Do you know to whom God gives material blessings? क्या आप जानते हैं परमेश्वर किनको जो है वास्तविक तौर से आशीष देता है? Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। It's a great verse. ये बहुत ही अच्छा महान एक वचन है। Today we speak, they preach about the prosperity gospel. और आज जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल करके एक निकला हुआ है। God gives material blessings to whom? तो परमेश्वर जो है वास्तविक तौर से किन लोगों को आशीष Verse देता है? 45. 35 देखते हैं। He makes the sun to rise on the evil and the good, और वो जो है भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय and करता है, sends the rain on the righteous and the unrighteous. और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। So, you know, those days everybody were farmers. और उन दिनों में ज्यादातर लोग जो किसान होते थे, And the most important thing farmers need for their fields and their trees is sun and rain. और वो ज्यादातर जो है सूरज और बारिश का इंतजार करते हैं किसान लोग। So, here is an evil farmer, here's a good farmer. एक यहाँ पे दुष्ट किसान है, दूसरा अच्छा एक धर्मी किसान है। Both get equal amount of sun, equal amount of rain. और दोनों को जो है सूरज की रोशनी और बारिश बराबर ही मिलती है। So, if you want God to bless you materially, अगर जो परमेश्वर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे वस्तु के तौर पर जो आशीष दे, you must be either good or evil. या तो आपको अच्छा बनना है या बुरा बनना है। Do you qualify? क्या आप इसमें पास होते हैं? Can you pass? क्या आप पास होते हैं? You have to be either good or evil. That's all. या तो आपको बुरा बनना है या अच्छा बनना है। God will bless you materially. तो परमेश्वर आपको आशीष You देगा। must be righteous or unrighteous. He'll send you the rain. आप धर्मी हो या अधर्मी हो, परमेश्वर आपको बारिश देगा। But if you want to know His secrets, लेकिन अगर जो उसके भेद की बातों को जानना चाहते हो, if you want to understand His covenant, उसकी वाचा को समझना चाहते हो, then you have to fear Him. That's a small circle. तो आपको उसका भय मानना पड़ेगा। You remember in the Old Testament, तो आप याद रखें उस पुराने नियम को। those Israelites disobeyed God, but they still got manna every day. हाँ, वो जो इजरायली लोग जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उनको भी रोज मन्ना मिलता था। Only 2 of them entered the promised land. उनमें से केवल 2 ही व्यक्ति वायदे किए हुए जगह में प्रवेश किया। All 600,000 got the manna. बाकी 6 लाख लोग जो है नष्ट हो गए, नाश हो गए। What does that prove? उसका प्रूफ क्या है? That proves that 600,000 people can get God's blessed material blessings. इसका अर्थ ये है कि जो बाकी के जो 6 लाख लोग हैं उनको भी जो है वास्तविक तौर से आशीष मिल सकता But है। only a small number may get into a life of victory. लेकिन जय केवल छोटे से एक झुंड को ही मिलेगा। Now these are not things that many people are interested in hearing. और ये ऐसी बातें नहीं जो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं सुनने के लिए। But when Jesus comes back लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, and we stand before Him, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, I'll tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
this is the most important message that you will value in that day. और उस दिन ये सबसे जो है प्रमुख एक ऐसा संदेश होगा जिसका आप कीमत देंगे। Just laying the foundation will not be enough in that day. उस दिन केवल नींव डालने से काफी नहीं होगा। What do you want the Lord to say to you when you meet him face to face one day? जब आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे आमने सामने, तो आप क्या चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में बोले? I know what I want him to say to me. मैं जानता हूँ वो मेरे बारे में क्या बोलना चाहिए Well done, good and faithful servant. कि बहुत अच्छा वफादार You दास। must long to hear that और आपको भी वही इच्छा होना चाहिए, because he suffered so much for you. क्योंकि उसने आपके लिए इतना पीड़ा सहा है, दर्द सहा है, He went through that agony of being separated from the Father to save us from sin. और वो उस दर्द को, उस पीड़ा को सहा है अपने पिता से अलग होने का, कि हमें पापों से बचाने के लिए। Don't you have a sense of gratitude? Lord, I really want to please you. क्या आपके अंदर वो आभारी मन नहीं है कि परमेश्वर मैं सचमुच में तुझे प्रसन्न करना चाहता Lord, I हूँ, want you to say to me that I was faithful to you on earth. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर तू ये बोले कि मैं वफादार सेवक था करके, दास था करके इस संसार में। Any true Christian will feel like that. और कोई भी सच्चा मसीह ऐसा ही सोचेगा। So really, I believe that the Bible is written only for such people. और बाइबल ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया करके मैं सोचता हूँ। When you come to the last page of the Bible, जब आप बाइबल के आखिरी किताब में आते हैं, the last page, आखिरी पन्ना, Revelation 22 verse 11. प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11। This is one of the most amazing exhortations in the Bible. और ये सबसे खूबसूरत संदेश है बाइबल का। You'll never find one like that anywhere else. ऐसा जो है कहीं और आपको नहीं मिलेगा। Let the one who does wrong still do wrong. जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करते रहे, Let the one who is filthy remain filthy. और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। Can you imagine that a holy book like the Bible says, remain filthy, keep doing wrong? क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि पवित्र बाइबल ऐसा कह सकता है कि जो अन्याय है वो अन्याय बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे? Imagine telling a person, are you doing wrong? Keep on doing wrong. ऐसा सोचिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि तुम गलत करते हो, तुम गलती ही करते रहो। Are you filthy in sin? क्या आप पाप में जो है एकदम मलिन हो? Keep on being filthy. तो मलिनता में रहो। You say that can't be in the Bible. ऐसा वचन बाइबल में नहीं होना But चाहिए, it is. लेकिन ये यहाँ है। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या है? Many years ago I sought the Lord about it. Many years ago I sought to understand why such a verse is in the Bible. हाँ, कई साल मैंने इसकी खोज किया कि क्या कहते हैं ऐसा वचन क्यों है। Lord, why have you said in the Bible that those who do wrong should keep on doing wrong? बाइबल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि तू अगर जो गलती करता रह रहा है तो गलती करता रहे, And why should you say in the Bible those who are filthy must remain filthy? और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे? Isn't it like that in your Bible? क्या ऐसे आपके बाइबल में लिखा है? And the Lord showed me the reason. और परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिखाया, That if after reading this book ये बाइबल पढ़ने के बाद you come to the last page आप बाइबल के आखिरी पन्ने में आते and हैं you still want to commit sin, और इसके बावजूद भी आप पाप करना चाहते हैं, then God says, फिर परमेश्वर कहता है keep on committing sin. There's no hope for you. कि आपके लिए कोई और आशा नहीं है और आप पाप लगातार करते रहें। That's why this verse is there. और यही इस वचन का अर्थ है। That you come to the last page of the Bible and you still want to commit sin. आप बाइबल के आखिरी पन्ने में पहुंच चुके हो और फिर भी आप पाप करना चाहते हैं। Then the Lord's exhortation is you keep on committing sin. यहाँ तक कि परमेश्वर भी फिर आपको प्रोत्साहित करता है कि ऐसा ही पाप करते रहे। The Lord says, I tried my best to teach you to be humble. और परमेश्वर कहता है कि मैंने जो है अपना बेहतरीन शिक्षा दिया कि तुम नम्र बनो, I tried my best to give you grace. और मैंने अपना बेहतरीन काम किया कि तुम्हें अनुग्रह दूं, I tried my best to urge you to acknowledge your sin and take the blame for your sin. और मैंने बहुत मेहनत किया कि तुम अपना दोष अपने ही But- ऊपर उठाओ जो गलतियां तुमने किया But you है, won't humble yourself. लेकिन तुमने अपने आप को दीन नहीं You will बनाया not take the blame. और तुमने अपनी गलतियों को अपने ऊपर नहीं Then the उठाया। Lord's word to you is be filthy. तो फिर परमेश्वर का वचन यह है कि मलिन ही रहो Remain in your sin. और अपने पाप में बने रहो, Do what you like. आज जैसा आपको चाहता है, मन करता है वैसे करो। And the Lord says, you and I will never be together in eternity. और फिर परमेश्वर कहता है कि अनंत काल में तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते, They will be outside the city. और वो शहर के बाहर रहेंगे। Verse 15.
और 15 में लिखा हुआ है, they will be outside with all the sorcerers and immoral people. और वो उन मूर्ति पूजक और बाकी लोगों के साथ बाहर रहेंगे। So these are very serious things. और ये बहुत गंभीर बातें हैं। Our attitude to sin determines whether God reveals his secrets to us or not. और हमारा जो परमेश्वर के प्रति मनोभाव है वो दिखाता है कि हमें परमेश्वर जो है अपना भेद की बातें बताएगा या नहीं। How did you find what you heard this afternoon? आज दोपहर को जो आपने सुना वो आपको कैसा लगा? You know, in the Bible there's milk and there is meat. और बाइबल में जो है मांस है और दूध है। Milk is easy to drink. और दूध आसान है पीने के लिए, It's for babies. वो बच्चों के लिए है। But meat is the word of righteousness. लेकिन जो मांस है वो धार्मिकता को दिखाता है, You have to chew. आपको चबाना है। And there are some truths in scripture which in our mind we have to chew and digest. और कुछ ऐसे वचन है जो कि हमें अपने मन में उसको चबाते रहना है। And if you find you only have a desire to milk which you keep swallowing without chewing, और आपको ऐसा इच्छा है कि केवल आपको जो है पीते रहना है, कुछ चबाना नहीं है, then you're one of those who will remain a baby forever. तो वह आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा बच्चा रहना चाहते हैं। But if you say, Lord, I want to move on from milk to meat, लेकिन अगर जो आप बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे दूध पीने वाले से मांस खाने वाला बनना है, like every mother will want the day when his little child can eat solid food. और हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा जो है एक दिन जो है भोजन खाने लगे, And is disappointed if the child is not growing. अगर जो वो बच्चा नहीं बढ़ता है तो वो माँ के लिए एक निराशजनक बात होगी। I believe the Lord is disappointed with his children who are not moving on from milk to meat. और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर निराशजनक है उन लोगों से जो दूध से अभी तक भोजन में नहीं प्रवेश किया। It's not a question of understanding. ये हमारी समझ के ऊपर है, It's a question of moving on from foundation to the building. ये हमारी समझ की बात नहीं, लेकिन हम नींव से इमारत खड़ा करने में काम कर रहे हैं या नहीं। Moving on from forgiveness of sins to overcoming sin. हमें क्षमा पापी से जो है हमें पाप के ऊपर जय पाना, उसकी ओर बढ़ना है। So I pray that all of us will come to that life of overcoming sin. तो हमें जो है उस पाप के ऊपर जय पाने वाले बनना है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। You don't have to be very educated or qualified to receive grace. आपको अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, But you have to be humble. लेकिन आपको दीन मन का होना है। That's all you got to pursue, humility. केवल परमेश्वर चाहता है कि आप जो है नम्र बने। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to see what are the most important things in the Christian life. तो हमारी मदद कर जो प्रमुख बातें हैं मसीह जीवन में उसको देखने के लिए। Help us to understand that and to be gripped by it. और प्रभु जी तो हमारी मदद कर ताकि हम उस बातों को समझ सके। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।